अभी तक हमने पढ़ा कि गांधी जी ने अपना आंदोलन क्यों वापस ले लिया. व्हाई डिड गांधी जी होल्ड ऑफ his second movement, second mass movement, civil disobedience movement? I just told you it was because of the Irwin's call to Gandhi ji for negotiation. इरविन ने गांधी जी को कहा कि अब आते हैं, बात करते हैं, और गांधी जी ने उसको क्या किया, एक्सेप्ट किया. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द गांधी इरविन पैक्ट. गांधी जी मीट विथ लॉर्ड इरविन, वायसरॉय ऑफ इंडिया, on 5th of March 1931. And what was the discussion? The issue was to what given to the Indian people. So Gandhiji decided to participate in the second round table conference to be organized in London. What is meant by round table conference? Actually, British government decided to talk with all Indian leaders, discuss with all Indian leaders, and this meeting was called the round table conference. First roundtable conference was launched in 1929, and in which Congress and Muslim League both did not participate. बट इस समय गांधी जी ने डिसाइड किया कि बात करनी है और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेना है. कब? 1931, जो दिसंबर में ऑर्गेनाइज हुआ. लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को कन्विंस करने की कोशिश की. ही ट्राई टू कन्विंस दैट decisions final decision will be made by the government of England. वो लंदन कोई गवर्नमेंट डिसीजन लेगी. So you must negotiate with the king of Britain. And Gandhiji decided in December. Gandhiji went to London to participate in the round table conference. But his demands were not fulfilled. And after returning, he relaunched the round table. He relaunched the movement, civil disobedience movement. एक्चुअली क्या था, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ गांधी विल पैक्ट. गांधी जी मिले इरविन से. गांधी जी ने कहा, गांधी जी वॉज एग्रीड दैट मैं बात करूंगा सरकार से, निगोशिएट करूंगा. और इरविन ने डिसाइड किया, कहा कि जितने भी प्रिजनर्स है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, हम उन्हें क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे. तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स वर रिलीज्ड एंड गांधी जी डिसाइडेड to participate in the round table conference to be held in December in London. So this was the important thing of Gandhi-Irwin Pact. Okay, now questions. What were the features of civil disobedience movement? Civil disobedience movement was a mass movement. It was started with the making of salt in different places. Salt were made. People again boycotted the goods. This time again liquor shops were picketed. In many places people denied to provide chowkidari rights. People violated the Forest Act. They moved, they entered into the forest, reserve forest. So these were the features, important features of civil disobedience movement. What do you know about Khan Abdul Ghaffar Khan? Khan Abdul Ghaffar Khan was called the Frontier Gandhi. खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा गया? फ्रंटियर गांधी. ही लेड हिज मूवमेंट इन नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस. और उन्होंने अपना आंदोलन कहाँ स्थापित किया, कहाँ चलाया? नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में, पेशावर में. Okay, write a note on Gandhi movement. Text, I told you Gandhi ji decided to meet with Irwin, discuss the issue. This is called Gandhi Irwin Pact. This was on 5th of March 1931. And the important features of the pact was Gandhi ji decided to suspend his movement, and Irwin decided, British decided to release all the political prisoners. And Gandhi ji was agreed to participate in the round table conference to be held in London. What do you know about Gandhi Irwin Pact? Okay, just same question is there. Why did Gandhi ji relaunch civil disobedience movement? गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्यों स्टार्ट किया दोबारा? तो गांधी जी relaunched civil disobedience movement because he was not satisfied
विद द डेवलपमेंट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उनकी डिमांड नहीं पूरी की गई, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, और यही कारण था कि गांधी जी ने लॉन्च किया, फिर से स्टार्ट। वाई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉस्ट इट्स मूवमेंट, अगेन सेम चीज, मूवमेंट अपना मूवमेंट को लॉस्ट कर दिया, उसका इंपॉर्टेंस उतना ज़्यादा नहीं रहा, क्योंकि गांधी जी ने जब कोई डिमांड किसी की पूरी नहीं हुई और बिना डिमांड पूरी किए ही गांधी जी ने डिसाइड किया था सस्पेंड करने का, तो लोगों को समझ आ गया कि शायद गांधी जी पर भरोसा शायद थोड़ा कम हुआ, क्योंकि डिमांड भी पूरी नहीं होती, आंदोलन तो स्टार्ट करते हैं बिना डिमांड पूरी किए हुए बंद कर देते हैं, तो जब दोबारा स्टार्ट किया, रीलॉन्च किया, तो वो उत्साह नहीं था, एंथुजियाज्म में कमी। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, हाउ पार्टिसिपेंट्स शो द मूवमेंट। अब यहाँ देखना है कि जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने मूवमेंट को कैसे देखा, कैसे चला। तो कंट्री साइड में फार्मर्स थे, जैसे जाट्स, उत्तर प्रदेश पाटीदार्स। अब यहाँ देखोगे कि अलग अलग कम्युनिटीज ने, अलग अलग ग्रुप्स ने आंदोलन में हिस्सा लिया। ऑफ कोर्स पीपल वेर फील्ड विथ द नेशनल सेंटिमेंट्स, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट तो था ही उनके अंदर, तो था ही कि देश के लिए कुछ करना है, लेकिन इसके अलावा उनका अपना भी फायदा, उन्होंने देखा कि ऐसा करेंगे तो हमारा खुद का भी फायदा होगा, इसके लिए उन्होंने मूवमेंट में हिस्सा लिया। अब बीच फार्मर्स जैसे जाट्स उत्तर प्रदेश और हरियाणा के, पाटीदार्स गुजरात के, उन्होंने क्यों हिस्सा लिया इसमें? रिच लोगों को लगा, एक्चुअली दे वर रिच बट दे वर हैविंग पे द रेवेन्यू, उनको लगा कि रेवेन्यू देना पड़ेगा, ग्रेट डिप्रेशन था, फसल खराब हो चुकी थी, और स्पेशली कई सारे हिस्सों में जो डिमांड्स थी ग्रेट डिप्रेशन की वजह से वो कम हो गई, तो फसल की प्राइस थे वो काफ़ी कम हो गई, तो किसानों की, उनकी किसानों की इनकम क्या हो गई थी, प्रभावित हुई थी। तो किसानों ने इसलिए हिस्सा लिया कि इस इन दिस टाइम ऑफ डिप्रेशन, इस डिप्रेशन के टाइम में जो रेवेन्यू है वो कम हो जाएगी, रेवेन्यू डिमांड, और इसलिए उन्होंने हिस्सा लिया। बट बाद में उनका उत्साह कम हो गया कि बिना रेवेन्यू कम किए ही, बिना टैक्स माफ किए ही गांधी जी ने आंदोलन वापस कर लिया। ओके, लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी पार्टिसिपेट किया। अब भारत के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, भारत के जो उद्योगपति थे, उनकी प्रॉब्लम क्या थी? दे कुड नॉट कम्पीट विथ द फॉरेन गुड्स, जो इंग्लैंड से जो प्रोडक्ट्स आ जाते थे, सस्ते प्रोडक्ट, उससे वो कम्पीट नहीं कर पाते। तो उनकी डिमांड ये थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करे, टैक्स ले, उनको प्रोटेक्शन दे। प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? जो ब्रिटिश गुड्स आते हैं उस पर इंडिया में टैक्स लगाया जाए, ताकि ब्रिटिश गुड्स महंगा हो जाए और वो अपने प्रोडक्ट को बेच सके। राइट, दे वांटेड प्रोटेक्शन। तो बिना उनको प्रोटेक्शन दिए ही गांधी जी ने आंदोलन को वापस कर लिया, तो इस तरीके से उनका भी उत्साह ठंडा पड़ गया, और उन्होंने अपने फायदे के लिए 1920 में ऑर्गेनाइजेशन बनाया, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड कॉमर्शियल कांग्रेस, खुद से मिलकर के बनाया, और 1927 में फिक्की की स्थापना करी गई। फिक्की का मतलब क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन ने अपने लिए, अपने फायदे के लिए, डिमांड्स करने के लिए, और वो डिमांड कब ज़्यादा सफल होता है, सक्सेस होता है, जब हम कलेक्टिवली डिमांड करें। तो सब लोगों ने मिलकर के, इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन ने ऑर्गेनाइजेशन बनाया फिक्की, जिसका उद्देश्य क्या था कि सरकार से अपने लिए ज़्यादा कंसेशंस की डिमांड करना। इनिशियली इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिजनेसमैन वे एंथुजियास्टिक, यस आई टोल्ड यू, एंथुजियास्ट थे, काफ़ी ज़्यादा थे, उत्साहित थे, लेकिन जब गांधी जी ने फॉलो किया उनके मूवमेंट, उनकी डिमांड्स को पूरा किए बिना, देन इट्स लॉस्ट द मोमेंटम। ये जो आंदोलन था, इसमें लोगों का इंटरेस्ट क्या हो गया, कम। इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस, नाउ आई विल टेल यू अबाउट द वर्किंग क्लासेस। वर्किंग क्लासेस का मतलब है लेबर्स, वर्कर्स। तो जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस था, उनका उत्साह हालांकि पूरे देश में नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि कांग्रेस पार्टी को आंदोलन करने के लिए फंड्स कहाँ से मिलते थे? कांग्रेस पार्टी को आंदोलन करने के लिए पैसे कहाँ से मिलते थे? वेरी सिंपल, वी यूज टू गेट द फंड्स फ्रॉम द इंडस्ट्रियलिस्ट। तो जो मजदूर थे, उन्हें लगता था कि हमारी डिमांड पूरी नहीं करेगी कांग्रेस पार्टी अपने आंदोलन से, गांधी जी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी को फंड्स कहाँ से आते हैं? इंडस्ट्रियलिस्ट से। और अगर कांग्रेस पार्टी मजदूरों का पक्ष लेती, तो
मजदूरों का फेवर करती, इंडस्ट्रियलिस्ट को नुकसान होता। दोनों के बीच जो रिलेशन है वो काउंटर रिलेशन है। अगर इंडस्ट्रियलिस्ट ने मजदूरी बढ़ा दी तो इंडस्ट्रियलिस्ट को लॉस होगा। ये सोच करके मजदूरों को लगा कि शायद कांग्रेस पार्टी हमारी डिमांड पूरी नहीं करेगी, तो मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द कंट्री दे डिड नॉट पार्टिसिपेट। इसके बावजूद भी नागपुर और छोटा नागपुर, इन नागपुर एंड छोटा नागपुर रीजन दे पार्टिसिपेटेड विथ एंथुजियाज्म। उन्होंने काफ़ी पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट किया, बट इन मोस्ट ऑफ द रीजन दे डिड नॉट पार्टिसिपेट और दे डिड नॉट हैव मच एंथुजियाज्म। बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं देखा कि स्मॉल पीजेंट्स वेर नॉट ऑल्सो वेरी मच इन्वॉल्व। जो छोटे किसान थे, छोटे किसानों की डिमांड क्या थी? छोटे किसानों की डिमांड थी जो रेंट उनको देना पड़ता था लैंडलॉर्ड्स को। वो लैंडलॉर्ड्स की ज़मीन पर खेती करते थे, ज़मींदारों की ज़मीन पर खेती करते थे, और बदले में ज़मीन का रेंट लैंडलॉर्ड्स को देते थे, आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और क्रॉप या फिर कैश। तो बहुत ज़्यादा था। तो स्मॉल पीजेंट्स का ये मानना था कि जो लैंड रेंट है वो माफ़ हो जाए या काफ़ी कम हो जाए। एक्चुअली वो भी सत्संग की थे। दे वेयर ऑल्सो नॉट पार्टिसिपेटेड विथ एंथुजियाज्म। स्मॉल पीजेंट्स ने भी पूरी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं किया। क्वेश्चन क्या है, क्यों ऐसा नहीं किया? वही, ऐसा क्यों नहीं किया? ऐसा इसलिए नहीं किया कि उन्हें भी लगा, छोटे किसानों को, कि कांग्रेस पार्टी इज गेटिंग फंड्स फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स। जो पैसे वाले होंगे वही कांग्रेस पार्टी को फंड देंगे। तो उन्हें भी लगा कि कांग्रेस पार्टी को पैसे कहाँ से मिल रहे हैं? लैंडलॉर्ड से मिल रहे हैं, जमींदारों से मिल रहे हैं। और छोटे किसान भी बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं थे। दे वी आर नॉट एंथुजियास्टिक। ओके, नाउ अब देखते वीमेन के बारे में। अगर देखें तो वीमेन का पार्टिसिपेशन बहुत कम रहा। हालांकि कुछ ऐसे लीडर्स थे, सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन ज़्यादातर वुमेन का जो पार्टिसिपेशन था वो कम रहा, लिमिटेड रहा। क्योंकि गांधी जी ने खुद भी कहा, गांधी जी अपील्ड वीमेन देमसेल्फ। और कांग्रेस लीडर्स ने गांधी जी ने अपील की वीमेन से कि दैट यू शुड फर्स्ट लुक आफ्टर योर फैमिली मेम्बर्स। सबसे पहले अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपनी फैमिली की जिम्मेवारी को पूरा करना चाहिए आपको। देयर आफ्टर यू गेट टाइम देन यू शुड कम टू द नेशनल स्ट्रगल। तो प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू द फैमिली मेम्बर्स। लुक आफ्टर द चिल्ड्रेन, केयर फॉर द फैमिली मेम्बर्स। फैमिली मेम्बर्स में वीमेन का इम्पोर्टेंट रोल है उनको केयर करने में। तो गांधी जी ने कहा सबसे पहले अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देनी चाहिए। इसके बावजूद भी वीमेन का पार्टिसिपेशन रहा, स्पेशली बाइकआउट में, फॉरेन गुड्स का बाइकआउट करने में, लिकर शॉप्स की पिकेटिंग में। लिक्विड शॉप्स को पिकेटिंग का मतलब क्या होता है? आगे रोक देना, लिक्विड शॉप को, लोगों को नहीं आने देना, राइट। तो ये पिकेटिंग में वीमेन का रोल रहा। जो गुड्स, फॉरेन गुड्स जो कलेक्ट करते थे उसके बाद उसको बर्न कराते थे, तो उसमें फॉरेन गुड्स को वीमेन से, उनके कपड़े और जो फॉरेन गुड्स थे जो उनको कलेक्ट करने में वीमेन का इम्पोर्टेंट रोल था। प्रचार करने में, इट मीन्स दैट लोगों को मोटिवेट करने में कि डोंट यूज़ द फॉरेन गुड्स, उसके नुकसान के बारे में बताने में, खासकर शहरों में, इन द अर्बन एरियाज, वीमेन प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बट दे ऑल्सो वर्क एज अ मैसेंजर, बट दे हैड द पैसिव रोल मोस्टली। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन उनका आंदोलन में झंडे हाथ में लेकर आगे बढ़ना और अंग्रेजों के खिलाफ सामने आकर आंदोलन करना, उसमें रोल कम था। पैसिव रोल वीमेन का काफ़ी ज़्यादा। और इट वॉज ड्यू टू गांधी जी। गांधी जी ने खुद भी कहा कि नहीं, विमेन शुड फर्स्ट गिव प्रायोरिटी टू देयर फैमिली।